Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be discussing chapter number 6 of the book Beehive, class 9 CBSE, and the title of the chapter is My Childhood. And it's a very beautiful chapter where we will know more about Dr. A.P.J. Abdul Kalam. So before we discuss this in detail, let me tell you, my dear children, that whatever is written in this chapter is actually a portion of the autobiography of Dr. A.P.J. Abdul Kalam, and that is Wings of Fire. डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, उसका कुछ हिस्सा इस चैप्टर में रखा गया है, लिखा गया है, और वही आज हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर इन डिटेल. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiamma. Now, Abdul Kalam says that he was born in a middle-class Tamil family, and in the island town of Rameswaram. You can see this on this map. Rameswaram, the coastal area of Tamil Nadu, at the end of the our country India, there it is situated. Erstwhile means former. So we all know that basically Madras was recognized as a state initially many years back, but now it is not recognized as a state, but that time it was recognized as a state, and Rameswaram was a town of this Madras state. My father Jainulabdin had neither much formal education nor much wealth. And talking about his father's name is Jainulabdin, and he had neither much formal education. Much formal education means maybe he was educated up to class 1 or 2, but he was not a highly educated person, nor much wealth, nor he was very rich. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. So despite being not a wealthy person, despite being not having a lot of qualifications, still he had great inborn natural wisdom. Innate, I-N-N-A-T. Innate means natural, inborn natural wisdom. बचपन से ही और प्राकृतिक तौर पर वो काफ़ी बुद्धिमान और ज्ञानी किस्म के इंसान थे. हालांकि उन्होंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की थी, फिर भी बचपन से ही जो उनका दिमाग बहुत तेज था. हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के फादर की. एंड ए ट्रू generosity of spirit. Generosity here means kind and helpful. He was very kind and helpful. वो बहुत दयालु और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे. उनके अंदर जो आत्मा थी वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी. He had an ideal helpmate in my mother Ashiamma. Helpmate means what? Support, और उनकी मदद करने के लिए कौन था? अब्दुल कलाम की मदर आशियम्मा. आइडियल मीन्स वॉट? आदर्श. ओके, बिकॉज हर मदर वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी वंडरफुल लेडी विथ लॉट ऑफ गुड एंड लॉट ऑफ क्वालिटीज़. इन फैक्ट उनके अंदर भी बहुत सी ऐसी अच्छाइयाँ थी, इसलिए वो एक आदर्श इंसान थी वो. ठीक है, जिसको हम एक आइडल की तरह देखते हैं कि हाँ भैया इनसे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together.
Now Abdul Kalam is saying that I do not recall the exact number. मुझे इतना याद तो नहीं है. रिकॉल मतलब याद करना, है ना. मुझे इतना याद तो नहीं है कि कितने लोग आके हमारे यहाँ खाना खाया करते थे, बाहरी लोग हर दिन. लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो बाहरी लोग हर दिन हमारे घर आकर खाना खाते थे, उनकी संख्या हमारे परिवार में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा ही रहती थी. कहने का मतलब अगर अब्दुल कलाम के परिवार में अगर 5 लोग हैं तो जो खाना खाने वाले जो बाहर से होते थे, जो आते थे, वो 5 से ज़्यादा ही होते थे. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. So he was just like other children, a short boy, not quite a tall boy. But he says that he was born to tall and handsome parents. लेकिन अब्दुल कलाम के जो पेरेंट्स थे, फादर एंड मदर, वो काफ़ी टॉल भी थे और हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे. लेकिन अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स मीन्स वेरी ऑर्डिनरी एंड कॉमन लुक्स, मामूली और जो आम तौर पर जो जैसे होते हैं वैसे ही अब्दुल कलाम भी थे. हालांकि पेरेंट्स बहुत खूबसूरत लंबे थे, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ जो है अब्दुल कलाम में नहीं आई थी. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. Ancestral house means अपने जो दादा परदादा, हमारे जो पूर्वज थे या फिर हमारे जो कई पीढ़ी पहले जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने इस घर को 19th सेंचुरी में बनाया था. हम उसी घर में रहते थे. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. एंड दिस हाउस वॉज ए पक्का हाउस, यू नो, एक ऐसी झोपड़ी नहीं थी. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द रियल हाउस ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. और वो किस घर में रहते थे? लाइमस्टोन एंड ब्रिक. लाइमस्टोन मीन्स वो चूना और ब्रिक मीन्स ईटा. तो ईटे और चूना से बना हुआ घर में वो रहते थे. और उनका घर कहाँ पर था? ऑन मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. रामेश्वरम में एक स्ट्रीट था, मॉस्क स्ट्रीट, वहीं पर उनका घर हुआ करता था. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austere means simple but very strict. So according to Abdul Kalam, जो उनके फादर थे वो बहुत ही साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन बड़े स्ट्रिक्ट थे रूल्स एंड रेगुलेशंस के. और वो हमेशा इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते थे. किससे? इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. ऐसी चीज़ें जिससे हमारी जीवन बहुत ज़्यादा सुखद हो जाए. कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज मीन्स जिससे हमारी ज़िंदगी और सुखद हो जाए और ज़्यादा हमको आराम मिले, वो ऐसी चीज़ों से दूर रहते थे. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, अगर आपको हवा चाहिए तो आप पंखे के नीचे बैठोगे तो भी आपको हवा लगेगी, और अगर आपको हवा चाहिए तो आप AC में बैठोगे तो भी आपको हवा लगेगी. लेकिन AC खरीदना वो क्या है? एक प्रकार से लग्जरी में आ गया, लग्जोरियस लाइफ जीने वाली बात हो गई. तो ऐसे ज़िंदगी से हमेशा अपने आप को दूर रखते थे. वो कहते थे ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतने पर्याप्त है, बहुत हाई फाई ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. But Abdul Kalam says that whatever we used to have as our requirement, we would get it from our parents. और जो भी हमारी ज़रूरतें होती थी उसमें कभी कोई कमी नहीं हुई. चाहे भोजन हो, दवाई हो, कपड़े हो, वो हमको जो है हमारे पेरेंट्स दिला दिया करते थे. कभी हमारे पास कमी नहीं रही. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. But rather he says that अब्दुल कलाम का जो बचपना था, है ना, बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही सेफ था, सुरक्षित बचपना था. और मेटीरियली भी और इमोशनली भी. इमोशनली पेरेंट्स थे और ब्रदर सिस्टर थे, हेल्प करने वाले लोग थे जो बैकअप दे रहे थे. मेटीरियली मीन्स हर ज़रूरतें पूरी हो रही थी. तो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जो है उनकी, बचपना जो है काफ़ी अच्छा रहा. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. So in the year 1939 what happened? Second World War broke out. Second World War start हो गया. और उस समय अब्दुल कलाम की उम्र क्या थी? He was 8 years old. ठीक है. और उनको आज भी नहीं समझ में आता है कि क्या वजह थी कि जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उस समय तो एकाएक मार्केट में जो है टैमरिन सीड्स मतलब इमली के जो बीज होते हैं, इमली की बीज की जो है डिमांड बढ़ गई मार्केट में. एकाएक बहुत ज़्यादा ही उसकी डिमांड बढ़ गई. इरप्टेड मीन्स बढ़ जाना, एकाएक मार्केट में डिमांड आ जाना. ठीक है, इरप्टेड मतलब.
I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. And now Abdul Kalam would collect those seeds. अब अब्दुल कलाम क्या करते थे, इमली का पेड़ तो कहीं भी देखने को मिल जाता है, तो वो जाते थे इमली के सीड्स को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे. प्रोविजन स्टोर मीन्स जनरल स्टोर, किराने की दुकान, और उसी मॉस्क स्ट्रीट पर किराने की दुकान थी, वहाँ जाकर वो बेचा करते थे. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. ठीक है, और दिन भर वो जो मेहनत करते थे या फिर दिन भर जो वो बेचते थे, तो उनसे उनको कितना मिलता था, 1 आना, 1 आना उनको मिलता था. प्रिंसली सम, प्रिंसली मीन्स अ हैंडसम अमाउंट. ओके, क्योंकि उस समय 1 आना बहुत बड़ी बात होती थी. ठीक है, उस समय 1 आना ही कमा लेना लगता था कि हमने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए. दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन दैट प्रिंसली सम. ठीक है ना. और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो एक इन एन आयरॉनिक वे में वो कह रहे हैं कि मतलब कि आज के समय में तो 1 आना की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उस समय 1 आना की क्या अहमियत थी, एक ना आयरनी की तरह वो बात कर रहे हैं. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. And his brother-in-law, और इनके जो brother-in-law थे जलालुद्दीन, ठीक है, और वो क्या करते थे, इनको कहानियाँ बताते थे. कौन सी कहानियाँ बताते थे, लड़ाई की, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वो जो है इनको बताते थे. ठीक है, कि आज ऐसा हुआ, आज इस देश पर हमला हुआ, आज यहाँ पर इतने लोग मर गए, ऐसा हुआ, ये हुआ. और बाद में अब्दुल कलाम क्या करते थे, जो कुछ जलालुद्दीन उन्हें बताए रहते थे, उन सारी चीज़ों को वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में खोजा करते थे. कौन से न्यूज़पेपर, दीनामनी. दीनामनी एक तमिल न्यूज़पेपर है, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो. दिस इज़ एक्चुअली दैट न्यूज़पेपर दीनामनी. तो उस दीनामनी में जो है पढ़ा करते थे कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बताया है, क्या वो सारी खबरें सही है कि नहीं. Our area being isolated was completely unaffected by the war. Now this Rameswaram, as you have seen, on your screens, I showed you that map. आपने मैप देखा, उस मैप में आपने देखा होगा रामेश्वरम एकदम नीचे, एकदम बॉर्डर कहीं कोस्टल एरिया पर है. तो चूंकि वो इतना हटकर था इवन वो, कि लड़ाई का कोई असर जो है रामेश्वरम पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया लड़ रही थी आपस में, लेकिन रामेश्वरम शहर पर जो है लड़ाई का कोई असर नहीं पड़ा. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. But finally what happened, India जो है वो भी एक तरीके से जो है लड़ाई के मैदान में कूद गया. कैसे, अलाइड फोर्सेस का साथ देने लग गया. अलाइड फोर्सेस किसके हैं, ये जो अमेरिका, इंग्लैंड और रशिया जो उस समय लड़ाई लड़ रहे थे, इनके साथ मिलकर भारत भी जो है दूसरे देशों के साथ लड़ रहा था उस समय. और ऐसे समय पर क्या हुआ, जब भारत भी लड़ाई में कूद गया, तो बेसिकली पूरे भारत में जो है एक आपातकाल स्थिति घोषित कर दी कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी. वेन एवर अ वॉर टेक्स प्लेस, अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, और वो डिक्लेयर कर दिया जाता है. नो, दैट हैपेंड. तो पूरे जगह जो है एक प्रकार से जो है कर्फ्यू की तरह जो है माहौल हो गया पूरे रामेश्वरम में, कह सकते हैं, या बाहर पूरे भारत में. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station. अब क्या हुआ कि जो सबसे पहली जो कैजुअलिटी, व्हाट डू मीन बाय कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मीन्स लॉस. जो सबसे पहला घाटा जो रामेश्वरम, जो ये जो गांव था, इसको जो झेलना पड़ा, वो कौन सा घाटा था, कि सबसे बड़ा नुकसान जो झेलना पड़ा वो कौन सा था, कि अभी तक रामेश्वरम जो प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रेन रुका करती थी, रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुका करती थी, लेकिन अब हॉल्ट का मतलब होता है रुकना. ओके, अब ट्रेन का रुकना जो है उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया. कहने का मतलब यह है कि अब ट्रेन जो है रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकेगी, कोई भी ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकेगी. और ये एक जो है बहुत बड़ी मुसीबत की बात थी. द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. अब क्या होता था कि जो हर दिन ट्रेन से जो है न्यूज़पेपर्स आते थे, दीनामनी जो न्यूज़पेपर है वो हर दिन ट्रेन से जो है स्टेशन पहुंचते थे, रामेश्वरम स्टेशन, और स्टेशन से जो है उस न्यूज़पेपर्स को लेकर सबको बांटा जाता था. लेकिन अब चूंकि ट्रेन रुकना ही नहीं है, तो क्या होता था कि चलती ट्रेन से जो है उस न्यूज़पेपर्स को फेंका जाता था. न्यूज़पेपर्स के जो बंडल्स हैं, बड़े बड़े बंडल्स हैं, जो वो ट्रेन से फेंका जाता था बाहर. कहाँ पर फेंका जाता था, इन बिटवीन रामेश्वरम रोड एंड दिस धनुषकोडी, ये दो जगहों का नाम है. उस बीच में जो रोड है, उस रोड पर जो है न्यूज़पेपर
फेंक दिए जाते थे, ठीक है। और क्या होता था, दैट फोर्स्ड माई कजिन समसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। और इनके जो कज़न ब्रदर हैं एपीजे अब्दुल कलाम के, जिनका नाम है समसुद्दीन, उस समय समसुद्दीन का काम क्या था, रामेश्वरम में वो न्यूज़पेपर बांटा करते थे। अब समसुद्दीन को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो चलती ट्रेन से जब बंडल फेंका जाए तो उसको पकड़ के उसको इकट्ठा करके जो लेकर आए, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी। और उस समय एपीजे अब्दुल कलाम खाली थे, उनके पास कोई काम नहीं था। और ऐसे समय पर शमसुद्दीन ने अब्दुल कलाम को ये काम दे दिया कि ट्रेन से जब बंडल्स फेंके जाएंगे न्यूज़पेपर्स के तो उसको तुम बटोर लेना, इकट्ठा कर लेना। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और पहली बार जो है इन्होंने कमाई की, या कमाई नहीं कह सकते, इन्होंने जो है मेहनत करके पैसा कमाया, और वो भी किसके थ्रू, शमसुद्दीन के थ्रू। हाफ ए सेंचुरी लेटर, और 50 साल बाद, उस घटना के 50 साल बाद अब्दुल कलाम कहते हैं आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। सर्ज मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और आज भी जब मैं उस बात को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती, गर्व होता है कि मैंने अपने दम पर, अपनी मेहनत पर पैसे कमाए थे, ठीक है ना। खुद मेहनत किया था, खुद काम किया था और मैंने पैसे कमाए थे। अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा अपना पैसा मेहनत करके मैंने कमाया था। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. और अब्दुल कलाम कहते हैं कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होता है। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है पेरेंट्स की ओर से मिली हुई क्वालिटीज़। कई बार आपने देखा होगा कि फादर की कोई क्वालिटी बच्चे में देखने को मिलती है, मदर की कोई क्वालिटी बच्चों को देखने मिलती है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर जो है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो माँ बाप के कोई ना कोई क्वालिटीज़ जो हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा, या दादा, नाना, या फिर किसी मामा या किसी के भी क्वालिटीज़ उनके अंदर देखने को मिल सकता है। फिर क्या है, इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। फिर वो एक ऐसे माहौल में आता है, सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या होता है कि जहाँ पे समाज भी है और जहाँ पे उनका अपना परिवार भी है। तो फिर वो एक ऐसे समाज में आता है जहाँ पर उसको समाज से वो कुछ चीज़ें सीखता है, समाज से कुछ चीज़ें लेता है, परिवार वालों को देखकर कुछ सीखता है, परिवार वालों को उनको देखकर कुछ लेता है। कुछ क्वालिटीज़ तो बच्चों के अंदर जन्म से ही होती है, और कुछ क्वालिटीज़ या कुछ आदतें कहाँ से आती हैं, समाज में दूसरों को देखकर, दूसरों की आदतों को देखकर, दूसरों से वो सीखते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस, एंड ट्रेन्ड इन सर्टन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और कुछ हद तक उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, किसके द्वारा, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब जो आपका देखभाल करने की जिम्मेदारी जिनके पास है। तो नॉर्मली दे आर, इट इज़, ही इज़ टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, ठीक है। तो बच्चों के अंदर देखिए कितने प्रकार की क्वालिटीज़ आई। एक क्वालिटीज़ तो इनहेरिटेड क्वालिटीज़ हैं जो पेरेंट्स और बाकी फैमिली मेम्बर्स की ओर से मिलती हैं। दूसरा कैसे क्वालिटीज़ हैं जो सोशो इकोनॉमिक, समाज से मिलती हैं क्वालिटीज़, समाज में देखकर हम लेते हैं। तीसरा क्या है, इमोशनल एनवायरनमेंट। इमोशनल एनवायरनमेंट मतलब आपके आसपास का माहौल कैसा है, लोग कैसे इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, आप कैसे लोगों से इमोशनली अटैच्ड हो, वहाँ से आप क्वालिटीज़ लेते हो। और फिर फाइनली जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, बेटा ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना वैसे करना है, तो वो भी आपके अंदर क्वालिटी आती है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब अब्दुल कलाम कहते हैं इनहेरिटेड, ठीक है ना। इनहेरिटेड का मतलब मैंने क्या लिया अपने पापा से, मैंने पापा से ऑनेस्टी को लिया और सेल्फ डिसिप्लिन को लिया। ये दो चीज़ें मुझे पापा की ओर से मिली। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और माँ की तरफ से मुझे कौन सी क्वालिटीज़ मिली इनहेरिट करने को, फेथ इन गुडनेस मतलब अच्छा कर्म करो। दूसरा डीप काइंडनेस, हमेशा दयालु रहो, दूसरों के प्रति जो है दया का भाव रखो। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और यही आदतें, यही क्वालिटीज़ मेरे बाकी 3 भाइयों और जो एक बहन है उनके अंदर भी यही क्वालिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन and Siva Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. Now Abdul Kalam says that he has 3
क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड. उनके बचपन में 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं. दे आर रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशम. और ये तीनों जो थे दे वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली. ऑर्थोडॉक्स मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट. कहने का मतलब जो है ऐसे परिवार से वो तीनों लोग आते थे जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, रीति रिवाजों को मानना और हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा अपनाते थे जो, और ऐसे लोगों को बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स. ठीक है. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences in upbringing. और हम बच्चों ने कभी भी आपस में हमको कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ, तुम हिंदू हो, तुम्हारे रीति रिवाज, तुम्हारे पूजा पाठ अलग है, मेरे पूजा पाठ, मेरे रीति रिवाज अलग है. और ना ही हमको जो है इस तरीके से पाला गया, ना ही हमें घर में कभी ऐसी बातें हमें बताई गई कि वो हिंदू है या ये मुस्लिम है या ये दूसरे धर्म का है, ये ब्राह्मण है. तो हमको कभी भी ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं थे. हम सब मिलकर आपस में खेलते थे और बहुत अच्छी तरीके से रहते थे. इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. बल्कि जो इनके मित्र रामानंद शास्त्री थे वो किसके बेटे थे? ही वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. जो रामेश्वरम टेम्पल के जो सबसे बड़े पुजारी थे उसके बेटे थे रामानंद शास्त्री. इतने बड़े पुजारी के बेटे थे, लेकिन एक मुस्लिम इंसान जो कि A.P.J अब्दुल कलाम है उनके साथ उनकी दोस्ती थी. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. और जब बड़े हो गए तो उसके बाद रामानंद शास्त्री जो अब्दुल कलाम के फ्रेंड थे, बाद में वो जो है उस मंदिर के बड़े पुजारी बन गए. अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. और जो उनके दूसरे मित्र अरविंदम थे वो जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर दिए. वो जो पिलग्रिम्स, जो श्रद्धालु, जो घूमने के लिए लोग आते थे, उनको पहुंचाना, ले जाना, वो इसमें लग गए. शिव प्रकाशन बिकेम ए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज. और जो उनके तीसरे फ्रेंड थे शिव प्रकाशम, व्हाट हैपेंड टू हिम, वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए सदर्न रेलवेज में. केटरिंग का मतलब क्या होता है? रेलवे में जो भोजन, जो खाना सप्लाई कराया जाता है, जो उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गए, खाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गए. ठीक है. During the annual Shri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. और हर साल जो है एक त्योहार मनाया जाता था खास तौर पे तमिलनाडु में, एंड दैट वाज व्हाट, सीता राम कल्याणम सेरेमनी. ये एक प्रकार से सीता राम कल्याणम सेरेमनी इसको इंग्लिश में बोलते हैं. और बेसिकली इसका मतलब ये है कि लॉर्ड राम की जो है शादी कराई जाती है सीता के साथ, तो उसे कहा जाता. तो इसमें होता क्या है कि सारे लोग क्या करते हैं कि वो बोट्स में बैठकर जो है वो जो है लॉर्ड राम के जो मूर्तियां हैं, आइडल्स मीन्स मूर्तियां, उन मूर्तियों को लेकर वो जो है उस पॉन्ड, एक पॉन्ड है बहुत बड़ा सा, उस पॉन्ड के बीचों बीच जाते हैं और वहाँ पर जाकर, वहाँ पर उस बीचों बीच जो जगह है उसको कहते हैं राम तीर्थ, और वहाँ जाकर वो लॉर्ड राम और सीता की क्या करते हैं, शादी कराते हैं. तो उस पॉन्ड के बीचों बीच जाने के लिए आपको नाव की ज़रूरत पड़ेगी. और उन जो बोट्स हैं, उन बोट्स की जो अरेंजमेंट कौन करवाता था, वो A.P.J अब्दुल कलाम के फादर ही जो हैं उन बोट्स के अरेंजमेंट करवाते थे. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. और बचपन से जो है हमारी दादी या हमारी जो मदर हैं उन्होंने हमें रामायण की कहानियाँ बताई, और फिर पैगंबर मोहम्मद साहब की जो हैं उनकी कहानियाँ हमको बताई. तो मतलब कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, हमें कहानियाँ दोनों की बताई जाती थी और हम ऐसे ही पढ़े सुनकर बड़े हुए थे. One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanand Shastri. One day what happened when he was in 5th class, when A.P.J Abdul Kalam was in 5th class at the Rameswaram Elementary School. Elementary school means school that runs up to 8th class, जहाँ पर 8th class तक की पढ़ाई होती है, that is called elementary school.
सो व्हाट हैपेंड, न्यू टीचर केम टू हिज क्लास, एक नया टीचर आया इनकी क्लास में, और हमेशा एपीजे कलाम जो है आगे वाली सीट पर बैठते थे, फ्रंट सीट पर बैठते थे अपने फ्रेंड रामानंद शास्त्री के साथ, और हमेशा अब्दुल कलाम अपने सर पर वो टोपी पहने रहते थे जिससे ये पता लगता था कि हाँ ये मुस्लिम है। और रामानंद शास्त्री क्या पहने रहते थे, सेक्रेट थ्रेड, सेक्रेट थ्रेड मीन्स हिंदी में हम उसे कहते हैं जनेव, ठीक है ना, ब्राह्मण जो पहनते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं जनेव, जो एक ऐसे रस्सी टाइप की जो पहने रहते हैं, दैट इज कॉल्ड जनेव, और रामानंद शास्त्री हमेशा जनेव पहने रहते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। नाउ दिस न्यू टीचर, अब जो नए टीचर थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. और समाज में ये ऊंच नीच बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से जो है समाज की ऊंच नीच वाली बातों को ध्यान में रखते हुए टीचर ने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि जाकर तुम एकदम पीछे बैठ जाओ, तुम्हें आगे बैठने की कोई परमिशन नहीं है। I felt very sad and so did Ramanand Shastri. Now what happened, APJ Abdul Kalam felt very bad and the same happened with Ramanand Shastri also. दोनों को बहुत बुरा लगा. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. And finally what happened, Ramanand Shastri was very much upset. Okay, downcast means very upset. बहुत दुखी हो गए वो जब अब्दुल कलाम पीछे वाली सीट में जाके बैठ गए. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और जब मैं आखिरी सीट पर बैठने जा रहा था तो जिस तरीके से रामानंद शास्त्री रो रहा था, वो जो दृश्य है, वो जो सीन है, वो एपीजे अब्दुल कलाम के दिल में जो है एकदम छाप की तरह जो है वो बैठ गया. आज भी अब्दुल कलाम याद करते हैं इतने सालों बाद भी कि उनके फ्रेंड ने उनके लिए मतलब आंसू बहाए थे. After school we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. और उसके बाद स्कूल के बाद what happened, Lakshmanan Shastri, APJ Abdul Kalam told his father and Ramanand Shastri he told his father, और दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आज हमारे साथ स्कूल में क्या हुआ. और अब रामानंद शास्त्री के जो फादर हैं, जो कि हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, उनका नाम था लक्ष्मण शास्त्री. ही समन का मतलब होता है टू कॉल, बुलाना. उन्होंने टीचर को बुलाया और अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री भी वहाँ पर मौजूद थे और सबके सामने उन्होंने टीचर से बोला कि डोंट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इक्वालिटी. ना समाज में जो है ये जो भेदभाव का जहर मत घोलो. एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. और ये मासूम बच्चों के दिमाग में ये जो कम्युनल इंटॉलरेंस होता है, जो मतलब एक प्रकार से जो है हिंदू मुस्लिम वाली भावनाएं जो है इनके दिमाग में मत लाइए आप. ही ब्लंटली आस्क द टीचर to either apologize or quit the school and the island. Bluntly means very strictly. उन्होंने बहुत सीधे तौर पर उन्होंने टीचर से कहा या तो माफ़ी मांगो या तो स्कूल छोड़कर चले जाओ, इस जगह को ही छोड़कर चले जाओ, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Now that teacher felt very bad for his behavior. Regret मतलब अफसोस करना, टीचर को अपने उस व्यवहार पर अफसोस हुआ. और लक्ष्मण शास्त्री कितनी मजबूत और कड़क बातें सुनकर अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, दैट यंग टीचर वाज आल्सो रिफॉर्म्ड. यंग टीचर का भी मन बदल गया, उसकी सोच भी बदल गई. On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. However, my science teacher, Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. Okay. Now, APJ Abdul Kalam says that, especially talking about the society of Rameswaram, they were very rigid. Very means very strict. और उनका कहना है कि जो रामेश्वरम जहाँ वो रहते थे, वहाँ का जो समाज था वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड था, बहुत स्ट्रिक्ट था. और उनकी ये मानसिकता थी कि हम जो है अपने कास्ट लोगों के साथ ही रहें या फिर हम दूसरों के साथ घुले मिले नहीं. और इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग जो है बटे हुए थे, सोशल ग्रुप्स में बटे हुए थे लोग, छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स में लोग बटे हुए थे, लोग मिलजुल कर नहीं रहते थे वहाँ पर. उस समय ऐसी स्थिति थी. लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं
जो ये बताते हैं कि नहीं, वहाँ पर भी ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी ये मानसिकता थी कि नहीं, ये ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद, ये सब कुछ नहीं होता. However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin, was with a very conservative wife, was समथिंग ऑफ ए रेबल. ओके, सो इनके साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, और वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली मतलब जैसे मैंने आपसे बताया कि जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं अपने रिलीजन से रिलेटेड. तो और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव वाइफ थी. कंजर्वेटिव मीन्स वेरी ट्रेडिशनल वाइफ. ट्रेडिशनल वाइफ मीन्स जो बहुत ज़्यादा रीति रिवाज को और तौर तरीक़ों को मानना और जो है इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानना, वैस उस प्रकार की वो वाइफ थी. लेकिन देखिए क्या हुआ, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजिली. लेकिन ये जो टीचर है, साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी ये मानसिकता है कि सामाजिक बैरियर्स मीन्स ये जो रुकावटें हैं, ये सारी रुकावटें हैं, कास्टिज़म और ये ऊंच नीच, जातिवाद, और इन सबको हमको तोड़कर ये जो तरह तरह के सामाजिक लोग हैं, तरह तरह के धर्म और जाति के लोग हैं, इन सब को क्या करना चाहिए, मिंगल मीन्स मिलजुल कर रहना चाहिए. दे शुड कम टुगेदर और दे शुड मिक्स अप, वो सब मिल जाएं और एक साथ मिलजुल कर रहें. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. और अक्सर वो अब्दुल कलाम के साथ घंटों समय बिताते थे और कहते थे, कलाम मैं चाहता हूँ कि you to develop, कि तुम भी बहुत बड़े इंसान बनो. ठीक है, ऑन पार मीन्स सेम लेवल. ठीक है, बराबरी, आप उनकी बराबरी करो. किनकी बराबरी करो? हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तुम उनकी बराबरी करो, मैं ये चाहता हूँ. ओके. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर ए मील. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. One day what happened, his science teacher, he called him, for a meal. उन्होंने घर पर बुलाया अब्दुल कलाम को भोजन के लिए. And when his wife, when she came to know that a Muslim boy has been invited to dine, in her ritually pure kitchen, she refused to serve, meal or in that kitchen. सो फाइनली व्हाट हैपेंड कि जब उनकी वाइफ को पता चला, साइंस टीचर की वाइफ को, जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ हैं, कि एक मुस्लिम लड़का मेरे घर खाना खाने आ रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो हूँ खाना उस आदमी को अपने हाथ से नहीं परोस सकती, मैं नहीं खिलाऊंगी उस व्यक्ति को खाना, क्योंकि वो मुस्लिम धर्म का है और हम लोग अलग धर्म के हैं. शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. लेकिन शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड का मतलब होता है अपसेट. वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए, अपनी वाइफ पर उन्हें गुस्सा भी नहीं आया, बट इंस्टेड बल्कि उन्होंने क्या किया, खुद अपनी हाथों से जो है अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया और अब्दुल कलाम के बगल में बैठकर उन्होंने भी खाना खाया. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर. और जो टीचर की वाइफ थे वो जो है किचन के दरवाजे से वो देख रही थी सब कुछ. आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील. अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं सच में यही सोच रहा था कि क्या उस औरत ने, या वो जो टीचर की जो वाइफ हैं, क्या उनको कहीं से भी मेरे खाना खाने के तरीके में, पानी पीने के तरीके में, जिस तरीके से मैं हाथ धुल रहा था अपना, ये सारी चीज़ों में कहीं से भी क्या उनको कोई फ़र्क देखने को मिला? क्योंकि हम सब तो हैं इंसान, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल हैव आवर ओन, वी ऑल ईट इन द सेम वे, वी ऑल ड्रिंक वाटर, दैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, सब पर लागू होता है. When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. और फिर उन्होंने अगले हफ्ते फिर शिव सुब्रमण्यम ने इन्हें इन्वाइट किया अब्दुल कलाम को कि फिर आओ हम लोग साथ में डिनर करते हैं. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. और अब्दुल कलाम थोड़ा से जो हेजिटेशन शो कर रहे थे. हेजिटेशन मतलब आनाकानी, इच्छुक नहीं थे वो दूसरी बार आने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था वाइफ क्या सोचेंगी, टीचर की वाइफ.
लेकिन टीचर ने कहा है कि देखो ये सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और एक बार अगर समाज को बदलने की हमने ठान ली है तो ऐसी समस्याओं का मुकाबला करना ही पड़ेगा। कन्फ्रंटेड का मतलब क्या होता है? टू फेस ना, ऐसी समस्याओं का मुकाबला करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam, Iyer's wife, took me inside her kitchen and served me food with her own hands. लेकिन जब अगले हफ्ते अब्दुल कलाम गए तो क्या हुआ, उन्होंने खुद, वो टीचर की वाइफ जो है, उन्होंने खुद अपने हाथों से जो है खाना सर्व किया अब्दुल कलाम को, अपने किचन में बैठाकर खिलाया। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Now what happened? अब इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुका था और जो भारत की जो आज़ादी थी, भारत आज़ाद होने के बहुत करीब था। इमिनेंट मीन्स वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक था, बहुत ही नज़दीक था भारत आज़ाद होने के लिए। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। और गांधी जी ने भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो भारतीय हैं वो खुद अपना देश भारत को बनाएंगे, तैयार करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. So पूरे देश में क्या था? The whole country was filled with unprecedented optimism. ठीक है ना? Unprecedented means never done or known before. ठीक है? Optimism means hope, एक उम्मीद, एक सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी। पूरे देश में एक प्रकार की पॉजिटिविटी फैली हुई थी, हर तरफ, हर लोग, हर जगह लोगों के अंदर एक विश्वास था कि अब हम आज़ाद होंगे ही होंगे। दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव थिंकिंग। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इट नेवर हैपेंड बिफोर, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि पूरे देश में जो है लोग एक होप के साथ, आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कह रहे थे कि नहीं, हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी। And meanwhile, what happened? Abdul Kalam asked his father, for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters. तो उन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया कि फादर, मैं रामेश्वरम से बाहर निकलना चाहता हूँ और आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, हायर स्टडीज़ करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे रामानाथपुरम जाना पड़ेगा। रामनाथपुरम वहाँ पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जहाँ पर और अच्छी तरीके से पढ़ाई कराई जाती है, जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा होती हैं ना, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसलिए वो चाहते थे कि बाहर जाकर वो पढ़ाई करें। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। फादर आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर बाद पापा, उनके जो फादर हैं, पिताजी, कुछ देर सोचने के बाद कहे, उन्होंने कहा, अबुल, मुझे पता है और तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, और तुम बाहर जाना भी चाहते हो, और तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट? सीगल, सीगल क्या है? एक एक्वेटिक बर्ड है, और ये जो है समुद्रों के किनारे, अक्सर इसको समुद्र के किनारे देखा जाता है। और ये बर्ड जो है ये कभी भी नेस्ट, अपना घोंसला नहीं बनाती पेड़ों पर, बल्कि जो समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, चोटियां होती हैं, हिल्स जिसे हम कहते हैं, वहीं पर, उन्हीं पत्थरों के बीच में, वहीं कहीं पर जो है वो अपना घर बनाती है, वहीं रहती है, लेकिन घोंसला कभी नहीं बनाती। और एक और खासियत क्या है कि फ्लाई अक्रॉस द सन, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि वो मुसीबतों के विपरीत जाकर उड़ती है, ना कि वो विपरीत डर कर जो है पीछे हट जाए। ठीक है? ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। Khalil, who is Khalil Gibran? Khalil Gibran is a wonderful and great poet of his times. अपने समय के एक महान पोएट हैं। तो what happened literally? Abdul Kalam's mother was not ready to send Abdul Kalam to a different city. मदर तैयार नहीं थी कि अब्दुल कलाम को बाहर भेजें। तो ऐसे में जो फादर हैं वो अब्दुल कलाम की मदर को खलील गिब्रान की कोटेशन याद दिलाती, खलील गिब्रान की कही हुई एक बात याद दिलाती है। खलील गिब्रान ने क्या कहा था? Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. खलील गिब्रान ने ये कहा था कि जो बच्चे आपके हैं वो एक्चुअली में आपके बच्चे नहीं हैं। वो बच्चे किसके हैं? वो हैं जिंदगी के बच्चे हैं। वो जिंदगी जो अपने तरीके से जीना चाहती है, बिना किसी बंदिशों के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के,
कहने का मतलब ये है, खलील गिब्रान की बात ये थी कि बच्चों पर आप रेस्ट्रिक्शन मत लगाइए, बच्चों पर दबाव मत बनाइए, बच्चों को आप जो है उनके ऊपर अपनी इच्छाएं, अपनी चीज़ों को थोपिए मत, उनको जैसे जीना है जीने दीजिए, जो वो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ठीक है, वेरी वंडरफुल लाइन। खलील कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो आपके द्वारा आए हैं लेकिन आपसे नहीं आए हैं। कहने का मतलब है कि वो है भगवान के हैं, भगवान ने उनको भेजा है, आप सिर्फ एक जरिया हो। यू पीपल आर जस्ट ए मीडियम। ठीक है, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप उनको प्यार करिए, अपना प्यार दीजिए बच्चों को, लेकिन अपने विचार उन बच्चों पर मत थोपिए कि मैं चाहता हूं तुम ये बनो तो तुमको बनना ही है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उन बच्चों की अपनी भी ख्वाहिशें हैं, अपनी सोच है, वो भी जीवन में कुछ अपने तरीके से करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम उन पर दबाव नहीं बना सकते। सो दिस वॉज एक्चुअली an extract that was taken from the Wings of Fire, a portion that was taken from Wings of Fire. I hope कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। Still अगर कोई confusion है, you can ask me in the comment section and I'll be responding to your queries. So that was all from this video. Thank you, take care and God bless you.